I'll just start recording. Yeah. So, hi everyone. Welcome to the second session of Was Elements, where we'll be talking about the game development process. So, if you were in the previous session, we discussed about what are video games basically, like the history वगैरह सब हमने discuss किया था, ठीक है? And basically just get an understanding of what exactly are video games. Then we talked about how exactly we design games, not the development part, just the designing part. What exactly is game designing? Okay. And we also talked about what are different elements of game design. And there you have your art, sound, story, and code. And we also talked a bit about how to get started with game development. Now, while we did talk about how to get started with game development, we didn't exactly talk about the main process that is involved in game development. Now, in this session, we'll mostly be talking about indie game development rather than the professional game development, because that's another topic in itself. But because we have an event coming up soon, and also because all of you are like beginners, so it's best to start with indie game development. So let's get an introduction. What exactly is the difference between a professional game development and indie game development? Okay. So does anyone has like any ideas कि क्या क्या differences होते हैं indie development and professional development में? You can unmute yourself. You can type it in the chat. Anyone? कोई भी नहीं हो? like पिछले सेशन में तो यार काफी इंटरेक्टिव था, कोई भी नहीं. EA Sports. Like EA is a company. Like games में difference अगर कुछ हो, like AAA titles जो होते हैं या फिर या कोई भी एक एग्जांपल ले लो, एक AAA टाइटल का एंड एक इंडी गेम का. What's the major differences you see in both the games? सब शांत हो गए, कोई नहीं. क्या AAA titles are big games, yeah. Indie games are not well developed. There's a difference between graphics. हाँ, सही जा रहा है, सही जा रहा है सब. So yeah, I think that was it. So let's talk about the professional games which are over there. So I mean जो AAA titles वगैरह होते हैं, कंपनीज हैं, you have your Ubisoft, EA हो गया, या फिर Nintendo is not exactly game development company, so yeah, Game Freak वगैरह. So they have big teams. Like एक example कर ले, Last of Us 2. If you have heard of that game, Last of Us 2 was a combination of 14 different game studios, and it involved over 2000 people in just one game. देखो 2000 लोग सिर्फ एक गेम कर ले. हमारे एक एक बैचेस में 700 लोग होते हैं. Is there anything important discuss? No. Abhi we're just talking a bit about like professional versus indie game development. So also professional, they also have like big budgets. पे वगैरह भी ज्यादा होती है, obviously बड़ी कंपनियां तो गेम्स चलते भी लंबे टाइम के लिए हैं, because like one project can run for like years over years. ठीक है. And one con about working on professional game is you're limited by your game document, your design document. यहाँ पे तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम नहीं होती आइडियाज की. जो डॉक्यूमेंट तुमको पकड़ाया जाता है, you have to work on that. Like if you are a 3D artist, you are given
कॉन्सेप्ट तुमको वो 3D मॉडल करना पड़ेगा, उसमें तुम ज़्यादा सोच नहीं सकता, मैं दिमाग लगा सकते, ठीक है। वर्क स्कोप कम होता है, विच मीन्स कि what kind of work that's assigned to you, you will only be doing that, ठीक है। लाइक मैंने 3D आर्टिस्ट का एग्जांपल लिया था, so you'll only be doing 3D आर्ट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, but you also have like little ownership over the game, गेम कंपनी का होता है बेसिकली। इफ यू आर लाइक टॉक अबाउट एनी ऑफ द ट्रिपल ए टाइटल्स, अगर कोई पूछोगे कि फीफा 21 किसकी गेम है, लोग बोलेंगे EA स्पोर्ट्स, कोई डेवलपर का नाम नहीं बोलेगा, डेवलपर होंगे बहुत सारे। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडी गेम्स, दे आर स्मॉल टीम्स, सिंगल लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लाइक टीम्स ही टीम्स होती है। देयर आर मल्टीपल गेम्स विच आर मेड बाय जस्ट अ सिंगल पर्सन, which are like pretty good as well, and budget ज़्यादा नहीं होता, पे भी नहीं होती sometimes, like if you are only making games for hobbies, like obviously ज़्यादा पे नहीं मिलती, मतलब गेम बनाते हुए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, गेम जब रिलीज हुआ तो उसके बाद भी चांस कम है, एंड छोटे टाइम पे तो ज़्यादा होता भी नहीं बड़ा, like you can make one indie game in like a couple of months, max a year, freedom ज़्यादा होती है, freedom of ideas as well and freedom of communication as well पूरा, because like you're a short team, you can like discuss बीच में, like if you like don't like something, if you like something, ठीक है, आराम से बातचीत कर सकते हो। वर्क स्कोप भी ज्यादा होता है, अगेन small teams, so one person has to work on multiple areas, like if you have someone working on 3D art, he may also be working in the coding aspect as well, टाइम थोड़ा ज्यादा देना होता है, मेहनत ज्यादा करनी होती है, लेकिन यू हैव थोड़ा फ्रीडम अच्छे से, एंड यू आल्सो हैव फुल ओनरशिप, तुम्हारा गेम है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट Undertale, it's an amazing game, and if you talk about Undertale, who made Undertale? Toby Fox. It's not a company, it's a name, not exactly the name, but yeah, pen name to sort of समझ लो in the game development area, the owner, full ownership एक बंदे की है, और like एक छोटी टीम की, नॉट लाइक अ बिग कंपनी, सो यू कैन से कि हाँ ये गेम मैंने बनाया था। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइक प्रोफेशनल एंड इंडी गेम्स। थियरी वाला बोरिंग पार्ट है वो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसेस दैट्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ गेम, ठीक है। फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेकिंग अ डॉक्यूमेंट। अभी मैंने वैसे बोला था कि फ्रीडम होती है, यू आर नॉट बाउंडेड बाय डॉक्यूमेंट इन इंडी गेम्स, बट इट्स बेटर टू हैव समथिंग रिटन डाउन, कि पता हो तुमको, खुद को पता हो कि गेम कैसा होना चाहिए, बेसिकली उसका फील क्या होना चाहिए, गेम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए खुद के लिए, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू मेक इट लाइक पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा डिटेल, लेकिन खुद के जानने के लिए पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। Just jot down something, थोड़ा documentation, even if you're going for like interviews in like game development company and stuff, the process is much more important than the final outcome. They actually in design jobs, they look for the process more than the final outcome. वो ये नहीं देखते कि तुम्हारा UI कितना सुंदर है, तुम्हारा मैकेनिक्स कितने स्मूथ है, ये देखते हैं कि तुम क्या सोचा कैसे था, सोच इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इज हाइट्रेटिव, घूमती रहती है, ऐसे नहीं होता कि एक बार बना दिया तो खत्म हो गया। एंड द डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्रिएटिंग एसेट्स, योर आर्ट एसेट्स, योर साउंड एसेट्स, म्यूजिक वगैरह जो हो जाते हैं, UI वगैरह जो हो जाते हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा फेवरेट पार्ट, कोडिंग करना। सबका नहीं होगा मेरे को पता है, लेकिन मोस्टली लोगों का ये फेवरेट पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग बनाना, ठीक है। एक बार प्रोटाइप वगैरह बन गया, प्रोटाइप ये प्रोग्राम हो गया थोड़ा सा, now it's time to put everything together, because when you're making prototypes, you're not exactly making it like final version. Prototype, it's in the name, you're just making something work over there. After that you add your assets वगैरह, सब एकदम सही से अच्छे से कर देते हो, then if when you are like completely ready, then you go to a release and वापस डेवलपमेंट अपडेट करें, ठीक, तुम्हारा गेम कभी खत्म नहीं होने वाला, मेरे को पता है, तुमको पता है, या तो कहीं बनेगा नहीं, या तो पूरे साइकिल में रहेगा, there is no other way out. That's the sad reality.
So yeah, design document, the most important part of any game. यहाँ पे you'll be talking about what's the genre of the game. Like it's a platformer है, shooter है, RPG है, card game है, rhythm game है, ठीक है, basic genre. उसके बाद what's the style, आर्ट स्टाइल हो जाएगी तुम्हारी, मॉडल की स्टाइल हो जाएगी, तुमको गेम गेम की स्टाइल पे जनरली, इफ यू वांट लाइक 3D गेम, इफ यू वांट लाइक 2D गेम, को पिक्सल आर्ट चाहिए, वेक्टर आर्ट चाहिए, हैंड ड्रॉन चाहिए, लो पॉली चाहिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वगैरह चाहिए, वो स्टाइल तुमको डिसाइड करना पड़ेगा. उसके बाद कोर मैकेनिक. यू माइट हैव अ लॉट ऑफ मैकेनिक्स इन योर गेम, बट एक दो कोर होने चाहिए दैट डिफाइंस योर गेम. ठीक है, जैसे कुछ गेम से मैजिक होता है, और यू मे हैव लाइक डिफरेंट गन्स, ग्रैपलिंग वगैरह हो जाती है, यू हैव मे बी लाइक डिफरेंट वर्ल्ड्स यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए. So you should have like a core mechanic, one or two core mechanics, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं होती. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा, a one bit puzzle platformer where the character can switch between black and white worlds to reach their goals. ठीक है, अब धीरे धीरे करके चलते हैं. One bit is an art style where you only pixel art style where you only use the colors black and white. ग्रे स्केल भी नहीं, बीच में ग्रे आ ही नहीं रहा, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, स्टाइल डिसाइड हो गया, पजल प्लेटफॉर्मर जॉनर डिसाइड हो गया, एंड कोर मैकेनिक यहाँ पे आ गया कि आई कैन स्विच बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड्स, दो वर्ल्ड्स हैं. ठीक है, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल जिससे तुम्हारे गेम का आइडिया पता लग रहा है. यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सब एक एक छोटा सा ऐसे एक एग्जांपल अपने गेम के आइडिया का डाल लो चैट में. कॉम्प्लेक्स हो फर्क नहीं पड़ता, रखो मत, लाइक कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं है, बट है तो फर्क नहीं पड़ता. बट एक सिंपल सा एक आइडिया ऐसे ही सोच के चैट में लिख दो सब. इट कैन बी एन आइडिया दैट यू माइट हैव थॉट ऑफ लाइक बहुत पहले, और लाइक या अभी कुछ सोच लो नया, जैसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी फ्लो हो जाए एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिविटी भी बढ़ जाए. मतलब पूरे टाइम मैं ही बोलते रहूँ, तुम लोग बोर हो जाओगे, वैसे ही डिनर का टाइम हो रहा है, सब भाग जाएंगे फिर बंद करके. सो एक आइडिया कोई भी, एक सिंगल लाइन, ज्यादा बड़ा भी नहीं, पर एक कोर मैकेनिक होना चाहिए, तुम्हारा जॉनर डिसाइड होना चाहिए, एंड तुम्हारा स्टाइल डिसाइड होना चाहिए. ये बस अभी से इतना चाहिए. ऐसा मतलब सब पूछेगा तो कैसे चलेगा, 2 मिनट तो दे भाई. अरे तो ले लेना भाई, टाइम ले ले, टाइम पूरा पूरा है. आराम से 5 मिनट ले लो, उसमें कुछ नहीं है. कुछ अगर पूछना है उस टाइम पे तो पूछ सकते हो. यू कैन टेक द एग्जाम, यू कैन राइट, किसी भी एक पुराने गेम का आइडिया भी लिख सकते हो. ऐसी जरूरत नहीं है कि इट शुड बी लाइक कंप्लीटली न्यू गेम. ये तुम बनाने नहीं रहे हो, सिर्फ आइडिया सोचना है. तो एक आइडिया ऐसी रैंडमली कहीं से बस सोच के बोल दो, ग्रेडिंग नहीं हो रही इसकी कि इतना सोचना पड़े. स्टिक बैलेंसिंग. 2D zombie shooting game with multiple weapons. Okay, that's one idea. Stick balancing, सुभांशु मेरे को समझ नहीं आया exactly how it will work. Like थोड़ा सा और explain करना पड़ेगा. Yeah, it can be like we can just if we are using a handheld mobile phone, we can हाँ. it can be very good because we can balance using the by tilting the phone to run a person from one place to another. That can be a good game to play. Okay. That can be based on a lot of mechanics that हम्म. can work. Yeah. But when you're writing a design document, तो थोड़ा सा sentence में पता लग जाना चाहिए.
Because if you only Okay. write stick balancing, मतलब यहाँ पे तो of course you're writing for yourself only, you obviously know the idea, but when you're working in a team तो सब डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि पढ़ के पता लग जाए, because you will Okay. not be there ना पूरे टाइम एक्सप्लेन करने के लिए. So yeah, ठीक है. An RPG game with team battles, okay. Classic JRPG, I like that. Story of a Soul Reaper who's now changing reality to save certain someone, main mechanisms, choices and scenario building और क्या डाल सकते हैं. Okay, nice. Visual novel style हो गया, or maybe an RPG, but yeah, branching narratives, yeah, nice idea. और कोई है लिख रहा है? So yeah, I think we have some good ideas. Oh, another one. 2D RPG where the main character tries not to die from dumb things in the game, dumb world. Yes, I was listening to dumb ways to die soundtrack. Okay. So yeah, simple सा example, बस idea convey करने के लिए कि what exactly is a game. This is not the entire तुम्हारी गेम का कॉन्टेक्स्ट पर स्टोरी नहीं, बट जस्ट एन आइडिया कि पता लग जाए सामने वालों की ओके दिस इज व्हाट द गेम इज अबाउट. Another example, if I try to make on the spot about Mario को ले लेते हैं. So yeah, an 8-bit also an art style, side scrolling puzzle platformer where the character tries to save the princess. Core mechanics anyway, but yeah, you have the story right there, context here, and पता लग गया कि it's a side scroll, it's a puzzle platformer because the main idea is there. Mario में कोर मैकेनिक है जंप करना. जंपिंग ही है कोर मैकेनिक तो है. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट या so yeah, now that we have your idea ready, now I have to write down बाकी का पूरा पार्ट, बोरिंग डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे आ जाती है. गेम का प्लॉट लिखना, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह, गेम की सेटिंग क्या है, इट्स द फ्यूचरिस्टिक गेम, इट्स लाइक सेट इन medieval times or maybe it's set in a like a dystopian future. Then sketching out rough ideas. Sketching is important. अगर तुमको ड्राइंग नहीं भी आती ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रफ स्केच कर लो कि एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि ऐसा दिखना चाहिए, कैरेक्टर्स ऐसे दिखने चाहिए, तुम्हारा मैप ऐसा सा दिखना चाहिए, तुम्हारे जो पजल्स हैं वो इस स्टाइल के होने चाहिए. ठीक है, गंदा सा स्केच भी चलेगा अगेन रफ आइडियाज के लिए. एंड सो फील जो तुम्हारे गेम की लुक एंड फील है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के आ जानी चाहिए और देख के जो तुम्हारे रफ आइडियाज होंगे स्केच करेगा. नेक्स्ट वी कम टू एसेट डेवलपमेंट, आर्ट. सो आर्ट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारी, स्प्राइट्स हैं, मॉडल्स हैं, एनिमेशन, बैकग्राउंड, गेम का यूआई वगैरह एंड अदर इफेक्ट्स लाइक पार्टिकल एंड स्टफ. बहुत कुछ है आर्ट में, बहुत कुछ है. जितना विजुअल, जितना भी like anything that you are seeing in a game that comes into the art asset development. उसके भी स्टाइल्स आर डिफरेंट. बात किया था जैसे हमने पहले 2D स्टाइल हो गया जिसमें पिक्सल आर्ट वुड बी दी बेस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी डेवलपमेंट, बिकॉज ए इट्स इजी टू मेक, बी सॉफ्टवेयर ज़्यादा साइंस में मिल जाते हैं, फ्री होते हैं काफ़ी, एंड वेब ब्राउजर वाले भी मिल जाते हैं. एंड एनिमेशन इन पिक्सल आर्ट इज ऑल्सो ईजियर because you don't have like a large canvas to work with. ये limitation है, like you cannot master pixel art starting में, but if you're starting with pixel art it's easier to get into. Drawing से better, like
वेक्टर आर्ट वगैरह से ज़्यादा आसान बनाना, बट लाइक इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक वेक्टर आर्ट तो वो है। बाकी हैंड ड्रॉन भी होते हैं। वन एग्जांपल हैंड ड्रॉन इज हॉलो नाइट। हॉलो नाइट इज एन अमेजिंग गेम, चेक ट्राई करना सब एक बार। वरना इफ यू आर गोइंग फॉर अ do watch out for remaining meeting time, it will be over है। या लास्ट टाइम तो जूम ने फ्री का वो दे दिया था, पता नहीं क्या करेगा। सब में आ रहा है क्या वो रिमेनिंग टाइम लिखा हुआ ऊपर 7 मिनट का? हाँ 7 मिनट आ ओह शिट। रहा है। देखते हैं। दोबारा करना पड़ेगा फिर क्या से मेरे को? मैं पता नहीं चले मेरे चले को भी। जाएंगे, लोग चले जाएंगे। कोई I नहीं think कोई we can come back to the same meeting later. देखते हैं 40 बंद होने minutes के बाद का। देखते हैं क्या होता है। Yeah. टिल देन एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी। सही है हाँ। Anyone that's over here, please join the Discord. वहाँ पे I'll put up a message for when this meeting randomly ends 6 मिनट के अंदर, तो नेक्स्ट वाली कब ज्वाइन करनी हो, ठीक है? सामने दिख जाएगा, पिंग का वो पिंग हो जाओगे जस्ट इन केस प्रॉब्लम हुई तो। नहीं भी सो वी कैन एटलीस्ट लाइक फिनिश द एसिड पार्ट तब तक। या सो 3D एसिड्स जो सबके फेवरेट होते हैं, इसके लिए वी हैव you can use your high quality like full detailed models, 3D models यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली तुम्हारा रैम सीपीयू ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा ध्यान से, बट तुम्हारे ऊपर है, कोई रोक नहीं रहा। और यू कैन यूज लो पॉलीगॉन, होता है ना थोड़े कार्टून स्टाइल, इफ यू हैव सीन 3D गेम्स में, तो दोज आर लो पॉली आर्ट 3D मॉडल्स। उसके बाद टूल्स, if you want to make your own game art, you can use like Photoshop, Illustrator, one pixel art color you can use Sprite, Piskel as well. 3D modeling color you can use Blender and Maya. Basically कोई भी image editing software for 2D images and stuff, or any 3D modeling software for your 3D models, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी यूज कर लो। Some software also have like an inbuilt image editor. Like GameMaker has its own pixel art editor. गंदा सा है, लेकिन sometimes it works. Like if you want to make like a simple box or like a circle, bullet वगैरह बनानी हो तो जल्दी से, तो that works easily. Sound also another important part. If you remember the last meeting, साउंड के अंदर तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, साउंड इफेक्ट्स, एम्बियंट नॉइजेस, वॉइस ओवर्स, बेसिकली जितनी चीजें तुमको सुनाई दे रही हैं वो सब आ जाएंगी, वो सभी बनाना होता है। Now, sound development is actually much difficult than me creating an art, क्योंकि इसके लिए अलग थियरीज होती हैं। अगर सिर्फ साउंड डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, इट विल टेक लाइक 3-4 hours और लंबा सेशन हो जाएगा। सो आई विल नॉट delve into it in deep. साउंड तुम उठा लेना अपने गेम का ऑनलाइन। Do give credit though, like if you are picking up your music from the net, नीचे लिख देना कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक उठाया, ये साउंड इफेक्ट्स उठाए इस वेबसाइट से। डोंट स्टील, ऐसे कभी चलाना। सो साउंड के भी अलग स्टाइल्स हो जाते हैं तुम्हारे। चिप ट्यून हो गया, इफ यू रिमेंबर मारियो वाला गाना, दैट्स चिप ट्यून। Chip tune is basically sounds that's generated from a chip. Quite literally इन्होंने उस genre का नाम लिख दिया। So it's made out of like sine waves and stuff. Basically it's more math than music, अगर background देखो chip tune के तो। क्या modern style हो गया तुम्हारा, modern instruments के साथ पूरा clean एकदम sounds. We have a medieval classic music like पुराने instruments के साथ, और futuristic पूरा synth wave style, etc. Different style होते हैं different games के लिए. That also depends on what style your game is. तो उस हिसाब से you'll change some. Again, बनाना मुश्किल है अपने खुद के म्यूजिक। Still, if you want to try out sound production,
You could use like FL Studio है, Reaper वगैरह है, GarageBand है, if anyone uses Apple. You can make your own music and उसको फिर import कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर. कोई भी like music production, music creation software जो होता है वो use कर सकते हैं. Now softwares don't have, ये जो game development software, they don't have tools to make your own music usually. नहीं होता. They however have mixing and modulation tools. Now what's the difference between music creation, aka production, or and mixing and modulation? Production is basically creating a sound. जैसे मैंने कोई कीबोर्ड उठाया, उसमें मैंने chords बजा दिए, and now I have something. ठीक है, एक वो मेरे पास म्यूजिक है. Now that's just plain piano, है ना. अब मेरे को अगर उसमें रिवर्ब वगैरह डालना है, so that would be mixing वाला part, modulation आ जाएगी. If I want to make it 3-dimensional, if I only want to make it like come from the right, like let's say game के right side पे there's a piano, वो बज रहा है, मेरे को वहां से चाहिए. So then I'll modulate the sound file to only come from that direction where the piano is. Yeah, that's the modulation. Mixing is basically तुम्हारे गाने में मसाला डालना. Modulation is basically making it fit अच्छे से गेम के अंदर. ठीक है. Now finding assets, there will be a game jam this weekend. उसमें if you can go ahead, make your own assets, no one is stopping you. But if you don't want to use up your time making assets, या फिर कोई जानते नहीं हो assets बनाना, तो like सीखने का time तो है नहीं. You can go to many websites. There are many websites to find assets. Like there's Open Game Art, there's itch.io, Spider Resource, Model Resource, Sound Resource, blah blah. Google search कर लो, ज़्यादा आसान. मैं बता रहा हूँ, मेरे जो जितने भी गेम्स हैं मेरे इच पे, आई लेजिट वेंट टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर गेम, एंड पहले दूसरे लिंक पे चल जाता था, जो मेरे को सुनने में अच्छा लगता था मैं वो डाल देता था. साउंड पे मैं उतना ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियस देना चाहिए. मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं नहीं देता था. आई जस्ट फाउंड लाइक व्हाट्स द क्लोजेस्ट टू व्हाट आई वांटेड एंड उसको डाल देता था. प्रोग्रामिंग, we have less than 1 minute. क्या ये बंद होगा? कौन? Yes. Yeah. So welcome back everyone to the half broken second session of Voiced Elements. So we discussed about how to create assets, how to get assets basically, right? So now we come to the most important part, the programming. And by most important, I literally mean the least important part. Trigger होंगे लोग, लेकिन trust me, programming is not even close to being the most important part in a game. Programming helps obviously, like उसके बिना game नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा. लेकिन प्रोग्रामिंग इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. जरूरी है लेकिन उतना नहीं. ओके, हो गया रोना, आगे बढ़ते हैं. क्या सो हाउ डू यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग? यू स्टार्ट विद प्रोटोटाइपिंग द कोर मैकेनिक्स. पूरा बनाने नहीं, ठीक है, तो एक बारी में पूरा नहीं लिख सकते कोड, एक बारी में पूरा प्लेयर नहीं क्रिएट कर सकते, एक बारी में सारे एनिमी, सारे मैकेनिक्स, सारे कटसीन्स तुम नहीं बना सकते. ट्रस्ट मी. So that's why we start with prototyping. We like हम नहीं तो गेम नहीं. मतलब प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट. मैंने ये बोला नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एलिमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने तो ये बोला. So yeah, you start with prototyping the core mechanics. पूरा नहीं बनाना, प्रोटोटाइप करना है. Because in an ideal game development scenario, you will have a team and teams will be working parallelly. आर्ट टीम अपना पूरा आर्ट बना रही होगी, म्यूजिक वाले अपने गाने बना रहे होंगे, ठीक है, पूरा डिक चिक म्यूजिक बच रहा होगा. लेकिन यू डोंट हैव द एक्सेस टू वर्क ना प्रोग्रामिंग वाली टीम के पास. सो यू स्टार्ट विद प्रोटोटाइपिंग. रैंडम बॉक्स रख दो या पुराने किसी भी गेम का स्प्राइट उठा के डाल दो अभी कल, ठीक है.
तो ये हो गया, प्रोटोटाइप्स हमारे बन गए. यू विल बी स्टार्टिंग विद लाइक योर बेसिक्स, प्लेयर मूवमेंट वगैरह हो गए, कोर मैकेनिक्स, शूटिंग, लाइक इफ योर गेम हैज शूटिंग तो उसमें शूटिंग भी आ जाएगी. एनिमीज प्रोग्राम हो जाएंगे तुम्हारे, कि एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा प्रोग्राम हो जाएगा. तुम्हारे पजल्स जो होंगे अगर गेम में, उसके मैकेनिक्स उनको प्रोटोटाइप करने होंगे. ठीक है, एक्सेट्रा. कोर मैकेनिक्स पहले, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बाद में आ सकती है. That will come in like finishing touches and stuff. But यहाँ पे you'll be making your core mechanics. You don't even have to know coding to make games. Trust me. Legend, अगर तुमको Hello World भी लिखना है तुम गेम बना सकते हो. Almost all these softwares have some sort of visual coding. GameMaker has drag and drop. Your Unreal has blueprint programming. Unity also has visual scripting. तो तुमको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. It helps a lot. When you're writing a script, it's much easier to add stuff. तुम्हारे पास freedom ज़्यादा होती है, that's definitely sure. Drag and drop पे उतनी freedom नहीं होती, and थोड़ा सा confusing भी हो सकता है. But you don't need to know programming. You don't need to know anything to make a game. Assets तुम online उठा सकते हो, programming तुम visually कर सकते हो, game तुम्हारा बन गया. So getting started with game development is not tough. You just have to know कैसे start करना है, which is the tough part. Yeah. Again, emphasis on prototyping. Game नहीं बनाना तुमको यहीं पे, ठीक है. एक बारी में you cannot like code पूरा Assassin's Creed, you cannot code पूरा Halo, ठीक है. एक एक मैकेनिक एक टाइम पे, ठीक है. यानी यूज लाइक प्लेस होल्डर्स वगैरह. बुलेट्स अगर तुमको डालनी है, बुलेट्स की जगह तुम एक सिलेंडर डाल दो. अगर तुम 3D गेम बना रहे हो, 2D गेम बना रहे हो, एक सर्कल का एलिमेंट डाल दो. बुलेट नहीं है तो ठीक है. एंड ऑफ कोर्स ये प्रोटोटाइपिंग, दिस इज नॉट द फाइनल मैकेनिक जो इम्प्लीमेंट हुआ गेम के अंदर. इट कैन चेंज और बी मॉडिफाइड लेटर. बहुत ज़्यादा चांस है चेंज होने का, ट्रस्ट मी. गेम जब तुम्हारा बन रहा होता है ना, तुम कोड लिख रहे होते हैं, तो अलग अलग आइडियाज आते रहते हैं. इनिशियल जो डॉक्यूमेंट है उससे ज्यादा आइडियाज आते हैं गेम के मेन प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में ज्यादा आइडियाज आते हैं, ट्रस्ट में. तो मैकेनिक्स चेंज होते हैं बहुत. एंड प्लीज डू नॉट फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पे तुम्हारी सीपी वाली स्किल्स काम नहीं आएंगे उतना, ट्रस्ट मी. ऑप्टिमाइजेशन की उतनी जरूरत नहीं है, स्पेशली इन इंडी गेम्स, बिकॉज द गेम दैट यू विल बी मेकिंग विल बी ऑन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्केल. ठीक है, वो मोस्ट लो स्पेक पीसीस पे भी चल जाएगा 60 FPS पे. तो ऑप्टिमाइजेशन बाद का रख दो. यहाँ पे योर प्रोटोटाइपिंग सिंपल इफ एल्स केस यूज करके बना लो. एंड प्लीज हर चीज टेस्ट करते रहो, एवरी मैकेनिक टेस्ट करते रहो. तुमको पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं से छुप के बग्स आ जाते हैं. तो रैंडम जगह से बग्स आ जाएंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा. ओके, story time. When I was in 11th class, there was this inter-school competition, game development का. ठीक है, so उसमें I made a game and थोड़ा सा time crunch पे था, because I had to submit that game before 12. So I submitted that game. मैंने mechanics ठीक है चल रहे थे मेरे, लेकिन मैंने मेन रूम को टेस्ट नहीं किया था, जो स्टार्टिंग रूम है. आई टेस्टेड द मैकेनिक्स, फाइन, वो सब चल रहे थे. आई डिडंट टेस्ट द मेन रूम, एंड माय प्लेयर फेल थ्रू द फ्लोर गेम के स्टार्टिंग में. So the game starts, you see the cutscene, and the player falls through the floor infinitely. तो उस गेम का तो कुछ हुआ नहीं फिर, ऑब्वियसली. कुछ इंटर को कुछ जीता तो था नहीं, गेम जब चला ही नहीं. तो प्लीज हर चीज टेस्ट करते रहो, हर लेवल टेस्ट करते रहो, हर मैकेनिक के बाद, हर चीज इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद टेस्ट करते रहो. दैट्स व्हाई योर गेम टेस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई big companies have open beta testing. They have a closed beta. They have an alpha testing. Alpha testing is your mechanics test करने के लिए, ठीक है. Then you have your closed beta, which is in like inner circle basically, testers का, where they also check कि कुछ bugs वगैरह तो नहीं है. They try to play the game. Then you have the open beta, where the public can play the game. Where the public can play the game,
that means you have a much larger player base, no? That can test your game, that can give you feedback, that can find out bugs that you wouldn't have expected. So yeah, main release से पहले get your game tested अच्छे से from someone else. Obviously तुमको टेस्ट करो, तुमको पता तुमने क्या किया, तुमको पता है कहाँ पे bugs आ सकते हैं. So get it test from someone else, so they might do something that's unexpected and you'll know कि हाँ यहाँ पे problem आ रही है. Testing बहुत important. So yeah, now you have your art, your sound and your code. अब सबको साथ में लाना है. तुमने टेम्परेरी ऐसे डालते कोडिंग करते हुए, उनको रिमूव कर दो, रिप्लेस कर दो बाय योर स्प्राइट्स एंड साउंड्स जो तुम्हारी टीम के दूसरे मेंबर्स ने उठा के दिए. ऑफ कोर्स बग फिक्सेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, कोडिंग से आते हैं बग फिक्सेस में लगता है. ऑल्सो फिनिशिंग टचेस, बेसिकली यू आर लाइक फीडबैक वगैरह. सो इफ योर कैरेक्टर गॉट शॉट, गोल लगी, ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं पे खड़े रहेगा. Obviously like गोली लगे तो थोड़ा पीछे तो जाएगा ना. That's the sort of feedback that we want over here. Visual feedback भी आ सकता है कि like if you click on a button, so button अंदर की साइड चला गया, उसकी फील आ गई, या फिर साउंड आई. ठीक है, that kind of finishing touches we're talking about. Cut scenes वगैरह, cinematics वगैरह, यही प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाते हैं. There's a mix between programming and art team. And additional effects, थोड़ा सा खाने के ऊपर मसाला डालना basically. You can add like your particle effects, my screen effect, like screen shake हो रही है earthquake के time, ambient audio, 3D audio, कि अगर तुम्हारे लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी साउंड शुड बी कमिंग फ्रॉम योर लेफ्ट स्पीकर ओनली, राइट से नहीं आनी चाहिए. साउंड मॉड्यूलेशन, इफ यू हैव अ रोबोटिक वॉइस ओवर देन इट शुड साउंड लाइक अ रोबोटिक वॉइस ना. ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन वॉइस आ रही है रोबोट के अंदर से. So yeah, that kind of modulation we're talking about. Then now that you have everything ready, time to release. Only when you are 100% ready कि हाँ ये जा सकता है पब्लिक में, तभी रिलीज करना. उससे पहले प्लीज रिलीज मत करना. You have seen what happened to Cyberpunk 2077. कुछ नहीं हुआ था, रश्ड गेम था, बहुत सारे बग्स थे, नेगेटिव रिव्यूज बहुत सारे आए हैं. You don't want that. So please test your game अच्छे से. Only release it when you're 100% ready. तुमको पता हो कि हाँ the art is good, the sound is good, the code works, bugs वगैरह नहीं है, ठीक. उसके बाद you can release. प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे गेम रिलीज करने के, फ्री वाले भी हैं. You can upload on GameJolt or itch.io. ठीक है, इससे if you want to release a game for free, go ahead. If you want to make it paid, go ahead. पैसा भी कोई देगा नहीं तुमको, trust me. But yeah, थोड़ा सा ये वेबसाइट भी ले लेते हैं. आई थिंक इट्स लाइक अ 70-30% कमीशन. 70% तुमको जाता, 30% वेबसाइट को. इट्स फॉर स्टीम में होता है एंड गेम जोल्ट में होता है. इच में आई डोंट नो, इच में आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है डेवलपर्स को. न्यू ग्राउंड है, न्यू ग्राउंड पर तुम लोगों ने खेले होंगे फ्लैश गेम्स इफ यू रिमेंबर. देन देयर आर पेड प्लेटफॉर्म, स्टीम है, गूगल प्ले है, एप्पल स्टोर है. ठीक है, यहाँ पे यू नीड टू पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा to make a game out there. So if you are starting with indie development, itch is the best place. itch.io is literally the best place. So give me 1 second guys. बोल के प्यास लग गई. So आगे बढ़ते हैं. अब रिलीज तो हो गया गेम, आगे क्या करना है? ये रिलीज हो गया, इसके बाद भी कुछ है, बहुत कुछ है. ट्रस्ट मी, रिलीज इज नॉट द एंड ऑफ द गेम. रिमेंबर ऑल माइट, सारा नहीं मुकोए प्लस अल्ट्रा, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा. ठीक है, योर गेम इज नॉट 100% रेडी येट. ठीक है, तुम इसको भी आगे लेके जा सकते हो, 110% कर सकते हो, बिकॉज गेम्स आर रियली परफेक्ट. कभी ऐसा नहीं होगा तुमने एक बार अपलोड कर दिया एंड वो अपलोड रहेगा हमेशा करें, बहुत रेयरली होता है. कुछ गेम्स ही हैं जो होते हैं, बिकॉज मोर आफ्टर was waiting for at least one anime reference. Of course मैंने बनाया है, कोई ना कोई anime reference तो हो गई, either an anime reference or a meme reference. So yeah, so after the release you might add like
बग फिक्सेस अगर कुछ हो तो DLCs वगैरह आ जाते हैं, तुम्हारे गेम के अपडेट्स आ जाते हैं, मे बी यूर रिलीजिंग साउंड ट्रैक ऑफ योर गेम, मे बी यूर रिलीजिंग आर्ट वर्क्स, वही है, अपडेट्स आते रहते हैं। यू वांट टू मेक योर गेम फ्रेश फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, कुछ ना कुछ नया आते रहे। लाइक इवन इफ कोई एग्जांपल ले लो, जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स हो गया, या फिर कोई भी डोडा डोडा हो गया, कोई भी एक मोबाइल ले लो, उसमें they keep releasing new characters, right? They keep releasing new characters, new skins आते रहते हैं, new events आते रहते हैं. They try to keep the game fresh. Like if you look at some game that's 100% complete, like Undertale, उसका ज़्यादा updates नहीं आते. The only update it had was the soundtracks. बस वो release हुए थे Steam पे. That was it. There is a sequel, obviously, Undertale का Deltarune है, but that's another thing. यहाँ पे we are just talking about one game. Sequels की अभी बात नहीं कर रहे. Sequels भी part है going ahead. And we are done with the process. Or are we? Like, we are never really done with the game development process because again iterative है, चलते रहते हैं loop में. Very rarely the loop ends. Infinite loop है. Programming वालों को अच्छा नहीं लगेगा. Design वालों का रोज का काम है. So yeah. So does anyone has any question about the process? Any aspect? Assets का या फिर प्रोग्रामिंग का भी और डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी पार्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो. जाना नहीं अभी, इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गेम जैम. ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज है, तो थोड़ी देर रुक जाओ बस. एंड चाहे अभी भी ना हो, फ्यूचर में अगर आज या रात को कभी भी कोई क्वेश्चन हो, हमने स्पेशली मेंटर्स असाइन किए हुए हैं डिस्कॉर्ड पे हमारे, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं. क्या जॉइन द डिस्कॉर्ड डेफिनेटली, वहाँ पे विल बी पोस्टिंग लिंक्स वगैरह, एंड वी आल्सो हैव लाइक स्पेशल चैनल्स वेयर यू कैन आस्क डाउट्स एंड स्टफ. ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आंसर कर देंगे हम, अगर अभी नहीं है बाद में है तो. लेकिन अभी भी कोई डाउट है किसी को या कोई भी क्वेश्चन है, चैट में लिख दो, माइक ओपन करके लिख दो, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी. कि मेरे को पता है किसी को सब कुछ तो समझ नहीं आया होगा, मेरे को खुद को नहीं समझ आया था आधे टाइम मेरे ये जब मैंने स्लाइड्स बनाई. बल्कि डिस्कॉर्ड तो ज्वाइन कर लो एटलीस्ट, वहाँ पे सब अपडेट्स वगैरह आ जाते हैं हमारे मोस्टली. अच्छा ठीक है. सो सरप्राइज, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं, चल ठीक है कोई नहीं. नाउ वी आर डन विद द बोरिंग पार्ट. यस, अब बात करेंगे गेम जैम की, जिसका सबको इंतजार था. ड्रम रोल. आई डोंट हैव अ ड्रम. कोई नहीं. So what's a game jam, you might be asking? A game jam is basically a hackathon where you make a game. इतना ही है, इससे ज्यादा क्या डेफिनेशन दूं मैं. इतना ही क्या. So it's a hackathon where you make a game. So थोड़ा सा दे देते हैं कि हमने क्या गेम जैम सोचा है अभी. ठीक है, so it will be 48 hour game jam, 2 दिन का, this weekend. ठीक है. The event will start at 5 p.m. on 22nd October, Friday, ये वाला. ठीक है. And at 6 p.m. we'll release the theme of the game jam. You'll be given a theme and उस theme पे एक game बनाना है. Please simple सा game बनाना. Don't leave it on a single mechanic. ऐसा ना हो कि तुमने सिर्फ VR या AR कुछ करके डाल दिया and वो game complete ही नहीं है. Make a simple game, make a complete game. मेरे को लेजिट फर्क नहीं पड़ता, तुम उसमें होलोग्राम भी डाल दो, अगर तुम्हारा गेम गंदा होगा मैं नंबर नहीं दूंगा. ठीक है. So yeah, the event will end 48 hours later.
6 p.m. or 24th 2021 TA vibes 2 है. So it's 48-hour contest, right? Yeah, it's a 48-hour game jam hackathon basically. 6 बजे स्टार्ट, 6 बजे थीम रिलीज होगा, फिर 2 दिन बाद 6 बजे विल एंड. उसके बाद सो जाना आराम से. संडे वैसे भी. या टीम साइज 1 से 4. यू कैन गो सोलो इफ यू वांट, यू कैन मेक अ टीम. सब तुम्हारे ऊपर है. No restriction. If you want to make a team, you don't have anyone, we'll be making a channel on Discord. There you can ask if someone wants to team up. या फिर अपने दोस्तों से बात कर लो. इसकी registration link and registration link will upload जल्दी. वीकली उसमें आ जाएगा, वीकली डाइजेस्ट में आ जाएगा. ठीक है. हम कोशिश करेंगे कि आप जब भी मेल खोलो तो आपको कोई ना कोई डिजाइनर से मेल आ जाए. So the game jam will be hosted on itch.io. Again, मेरी favorite website. स्पेशली IT वालों से बात करके अनब्लॉक करवाइए कॉलेज में, ठीक है, कि गेम जैम हो जाए. तो प्लीज पार्टिसिपेट कर लेना सब लोग. एंड आफ्टर द इवेंट एंड्स, so on Monday we will be playing all the submitted games live on Twitch and YouTube. Yay! यार कोई सामने नहीं है ना, वो रिएक्शन नहीं दिखते किसी के. मैं यहाँ पे फुल एकदम अपने थिएटर मोड में आ जाता हूँ. So yeah, Also, we'll be guys, live streaming subscribe all to the YouTube. games on YouTube and Twitch on 25th, the next day. ठीक है, कि तुम्हारे को अभी रेस्ट का टाइम मिल जाए एंड फिर तुम सबके गेम्स भी देख लो. एंड ऑन द सेम डे लेटर इन द नाइट we'll release the scores. कौन जीता. So Also, his YouTube channel is डिजाइन आपका जाके सब्सक्राइब कर लो. एंड ये वाला वीडियो सिर्फ जो लोग न्यूज़लेटर में हैं उन सबके लिए एक्सक्लूसिवली रहेगा. एंड देन वी विल रिलीज द वीडियो लेटर फॉर एवरीबॉडी. Yeah. मतलब गेम जैम का भी इंफॉर्मेशन तुम सब लोग को सबसे पहले मिल रहा है. You can think of any ideas beforehand, क्योंकि जो मेन गेम बनाना है that will be done in the 2 days, but you can think of the ideas beforehand. you can think of an idea, you can make your teams अभी से if you want. Yeah. क्योंकि अभी कितने 8 लोग हैं, 8 लोग में से भी 3 तो हमारे ही हैं. हाँ, तो जितने 5 लोग हो, you are the first ones to know about this. ठीक है. बाकी डिटेल्स will be uploaded on the email account. Yeah, वीकली डाइजेस्ट में आ जाएगी ईमेल में सबको जल्दी. And just a backend information, we are also trying to get a speaker. Hopefully that's achieved. We may have a speaker who is a lead designer at EA Sports. So we are planning that too. Let's see what happens. Fingers crossed for that. बहुत कुछ है हमारे पास मार्केट में अभी. So yeah, join the Discord. Link है chat में. Discord पे we'll have all the major updates सबसे पहले. Like email से पहले भी updates आ जाते हैं Discord पे, so join Discord. And after that, okay, सब हो गया. If anyone else has any other questions, so बता दो. Guys, stay back for a while. Wait. You three, Apurv, Yogesh, Subhanshu, just wait for Dhruv recording. That's it, right? Like for the Yeah. session. Okay. Yeah. I'll stop the recording now.